मेरे को एक चीज़ दिल पे हाथ रख के बताना, इज़ अ 40,000 pounds annual income possible? Part-time job that I do, I earn 0.75 pounds. तो minimum wage है वो है 0.75. I literally had tears in my eyes. दुखी इसलिए क्योंकि अब 1 साल या 6-7 महीने में अपने घर नहीं जा सकता. घर से निकल के एक दूसरी जगह पे जाके घर बनाना. तुम्ही जर बाहेर जाणार असेल आणि बाहेर जाऊन जर तुम्हाला खूप जास्त डिप्रेस्ड वाटतं आणि तुम्हाला असं वाटतं की मन हलकं करायचं मला, तिथे तुम्हाला दर 10 लोकांमध्ये एक मराठी माणूस भेटेल. वो जो फिंगर है, जो थंब है, वो थोड़ा सा ऊपर गया. आई सॉ कि Don't tell me it was not 120. आई सॉ कि 120 पाउंड्स की जगह पे इट वाज 468 पाउंड्स. जॉब्स अवेलेबल है, वो आपको इसीलिए नहीं मिलते बिकॉज यू आर नॉट वर्थ दैट जॉब. मैं तो ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि यूके मत जाओ. Hello and welcome to the very first episode of Salvi Connect. I'm Salman Shah, your host for this exciting season. Thanks to all your love and support for our previous shows like Sal Says on Saturdays. And after so many requests, we are super excited to kick off a brand new season with a fresh show and some amazing new industry experts. एक और नया शो, एक और नया पॉडकास्ट, लेकिन वाइब्स वही पुरानी वाली. The idea behind Salvi Connect is very simple: to gain real industry insights and tackle the actual challenges which students face. There are so many podcasts, as you know, happening outside, but we are keeping it real, simple, and straight to the point. In this podcast, we are diving deep into everything you need to know about studying in the UK. Real life stories, job market trends, the popular courses, and the exciting universities, and so much more. So, shall we connect? Alright, so it's time I introduce your guest for today. He's not just your regular student, but a powerhouse. A digital influencer, an entrepreneur, a motivator, and a public speaker since a decade. And he's someone who's already making waves while pursuing his studies in the UK. From creating content that resonates with a lot of students, to launching his own ventures, to helping fellow students through his journey, a member of the Toastmasters International and a former president with the Ace Nova Toastmasters Club. He's doing it all. Currently studying in the University of Essex in the UK, he's here to share what life is really like as an international student, beyond brochures and beyond the Instagram stories. Give it up, guys, for Pratham Vaidande. Welcome to the show, brother. So good to have you with us. Thank you so much, sir. It is really my pleasure and honor to be here on your show. Thank you for the beautiful words, by the way. And it's been almost a year that we've met. Yeah. From the times when we met, so I call it Jab We Met, by the way. Jab we met, Right. we connect, and Jab we Exactly. met. So how we met last year, maybe a little before that, your discussion with the team. So before, I mean, obviously we've known each other for a while now with your international experience. Before we move a lot ahead, just a quick recap to our audience about who is Pratham Vaidande. Your bachelor's, where are you coming from, where do you reside, your bachelor's field, course, and the journey from there onwards. Just a quick recap to our audience. Sure thing. So, I'm Pratham and I'm a 22-year-old public speaker. मैं पैदा हुआ एक छोटे गांव में, कोरेगांव, जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ पे सर सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं. There is something but nothing. So I wanted to pursue starting में कॉमर्स वाला फेज था कि मूवीज़ में देखा, सब सीरीज़ में देखा, एक बिजनेस माइंडेड पूरा एक सिनेरियो दिखता है. तो स्टार्टिंग में लगा कि कॉमर्स में जाते हैं. माँ बोली कि साइंस करोगे तो कॉमर्स में भी जाता आएगा. तो आई सेड कि ओके, साइंस इज़ फाइन. IITs, JEE और नीट के लिए भी मैंने प्रिपेयर करना चालू किया.
11th 12th मेरी वैसी गुजरी. Then somehow I survived. I'm saying I survived. Survived. Then I got into an engineering institute in Pune. I did my bachelor's in artificial intelligence Lovely. because AI was the new bubble. Absolutely. So I thought to crack it. Hmm. I went to the institute and कहीं ना कहीं engineering बहुत अच्छा जा रहा था. बट एज साइड कि इंजीनियर्स कभी चुप नहीं रहते. इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करते हैं. True. तो आई थॉट कि जी. इंजीनियरिंग इज़ वेरी फाइन, इट इज़ वेरी गुड, लेकिन वो एक टैबू बन गया है. मतलब जी. एक लाइन खींच दी गई है कि इंजीनियरिंग ऐसा ही है. इंजीनियर्स दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. Absolutely. बट आई थॉट कि नहीं, इससे बढ़कर है हम. तो तब आई गॉट इनटू दी कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री एंड फिर उसके साथ ही आई स्टार्टेड माय पब्लिक स्पीकिंग सेशंस इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विद माय मेंटर मिस्टर सौरभ भोसले. सो चीज़ें बहुत अच्छी चली तब. बट CAs गई, TAs गई, एग्ज़ाम्स सब होते गए और तब कहीं ना कहीं तो एक एहसास हुआ कि ये सब ठीक है, बट I cannot live that 9 to 5 वाला engineering circulation. You need something more. तो I wanted to learn more. कहीं ना कहीं तो उस कोर्स से, उस स्पेसिफिक टॉपिक से कुछ ना कुछ निकले जहाँ से मुझे और मेरे साथ वाले लोगों को भी प्रॉफिट हो. तो एक मतलब ट्रेंड आ रहा था तब, एब्रॉड एजुकेशन का ट्रेंड था. जी. बट आई थॉट कि वो सिर्फ ट्रेंड नहीं है, बाहर जाके सीखना कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं, It's a बहुत different चीज़ें होती हैं. experience, absolutely. तो आई वॉज लिटरली सर्चिंग अ लॉट ऑफ कंसल्टेंसीज. आई वॉज ऑल्सो अप्लाइंग टू न्यू इंस्टीट्यूशंस ऑन माई ओन, बट वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है. जी. बहुत वाइटल होता है रेज्यूमे बनाना, बहुत वाइटल होता है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना, और काफ़ी टफ चीज़ है. तो मुझे लगा कि ये मैं अकेला तो नहीं कर पाऊँगा. तो विद सम रेफरेंसेस विद माय फैमिली फ्रेंड्स हु वेंट टू द अब्रॉड इंस्टीट्यूशंस, तो उनकी मदद से मुझे वी कनेक्ट के बारे में पता चला. तो आई गॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद द वी कनेक्ट एग्जीक्यूटिव्स, काउंसलर्स. तो बहुत मतलब ऐसा कभी नहीं लगा कि आई एम स्पीकिंग टू अ काउंसलर. ऐसा लग रहा था कि दे आर माई फैमिली Absolutely. and they are taking care of me. And that's exactly what every student wants. Exactly, The more I understand, this field is very professional, but the more professional you get, most of the time the students are in the age group of 19, 20. You know, at that age, if you have someone who you are not comfortable with, Right. वो जो लॉन्ग प्रोसेस होता है ना आपका 8 महीने का, 8 months to 1 year इसका प्रोसेस होता है. So it becomes very difficult for a student to relate. You know, Exactly. and that's something which we feel somewhat. I would not here want to talk more about that. Right. Obviously, it's a small work which we do, and we want to help students, and we are glad that we could be with you over your entire process. Right. So here mainly I can understand that you coming from a background in which you were thinking you were not sure about कि बाहर जाना है कि नहीं जाना. काफ़ी Right? कंफ्यूज था. बहुत confusion था आपको. So how did UK as a country you chose? ये destination पहले से fix था कि UK में ही जाना है या कुछ और thought था उसके ऊपर? How did UK happen to you? एक्चुअली जब इंजीनियरिंग मेरी बैचलर्स का फाइनल ईयर चल रहा था, जी. तब आई थॉट कि USA जाना, हम्म. बिकॉज US में ज़्यादातर इंजीनियरिंग के लिए Absolutely. मास्टर्स वगैरह जी, बहुत जी, अच्छा जी. चलता है. तो बट आई हैड अ स्पेशल एलिमेंट. हम्म. एक्चुअल में एक आइडियाथॉन हुआ था इंस्टीट्यूशन. जी. उस आइडियाथॉन में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था फाइनेंस का, हम्म. और वो हमने क्रैक किया जी. एक सॉफ्टवेयर की मदद से. जी. एक फिनटेक सॉफ्टवेयर था. जी. तो एंड वी एक्चुअली वन द प्राइज. Oh, lovely. तब मुझे लगा कि इस फील्ड में फिनटेक में हम कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं. जी. तो मैंने बहुत रिसर्च किया तब ऑन माई ओन. हम्म. सेल्फ रिसर्च करने के बाद हमने समझा कि UK फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है. जी.
तो यूके की यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करे जी तब थोड़ा डिसीजन थोड़ा मेरा फ्लोटिंग था, जी क्योंकि फैमिली I know. फ्रेंड्स सबको छोड़ के सर बाहर I जाना know. जी इजी थोड़ी है वो, इट्स अ टफ कॉल बहुत बहुत जी टफ। तो इसलिए वो फ्लोटिंग डिसीजन जी एक मोमेंट के बाद मुझे समझा कि नहीं, वी आर लिटरली मेड फॉर इट। मेरा डिसीजन फिक्स है, जी मुझे बाहर जाना है, कितना भी स्ट्रगल हो, कुछ भी हो, बट आई वांट टू मेक इट हैपन। basis on your research also, Right. which you have done with your friends, colleagues, with your research, because I give a lot of importance when you are at this stage. So मैं students को ये बताता हूँ कि you have your family, you have your friends, you have your colleagues, you have a lot of people, but then खुद का research जो होता है ना, it is always the first thing that you should be doing. Take advice from everyone, but go with your gut at times also. There is that thing कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है. Advices keep popping in from everywhere. But आपका call finally आपका call है. That's what I tell a lot of students. Oh yeah, we just want to ask you one more thing. MS in what stream is that you're doing? You're doing it from financial technology, Yeah, I'm or doing it is it from- mixed with AI or only masters in finance technology now? इट इज़ मास्टर्स इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बट बिकॉज मेरा बैचलर्स का बैकग्राउंड एआई में था, जी तो चूज करते वक्त मैंने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस Okay. ये कोर्स चूज किया, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं तो एक ब्लेंड बैठ सकता है। एंड अभी भी मैं जो सीख रहा हूँ फिनटेक, तो उसमें एआई बहुत अच्छे से यूज़ होता है। So perfect bridge from a bachelor's degree in AI Right. to your thought, and then to come to the course and the college that you've selected. Right. कुछ बीच में अप डाउन नहीं हुआ, because a lot of times students have change of streams also. Right. बहुत difficult होता है उसमें, हमें भी as counselors and consultants to apply to a college, and then a lot of offer letters would not come in because there is a change of stream. In your thing, I guess it has been a very smooth right from plan A to plan Z. Right. Everything has been very smooth. Good to hear that. तो जब डिग्री हुई जी उसके बाद a lot of my friends and family members they started saying कि बेटा जॉब कर ले अभी फिलहाल वही 2-3 होता साल के लिए जॉब कर दे, एग्जैक्टली और बाद में मास्टर्स के लिए चले जाने, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस ले एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स योर मास्टर्स। बट मैंने ये सोचा कि अभी नहीं तो कभी, एग्जैक्टली अगर मैं अभी नहीं गया, क्योंकि आपको मतलब जो एक स्ट्रगलर का फेज होता है जॉब का, जॉब आई, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, फिर फैमिली आई, फिर शादी आई, सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने जॉब चूज की, then I'll never be able to proceed towards the master's program. Absolutely. So there are two types of students. One, like you said, कि जो यहाँ पे immediately plan कर लेते हैं after bachelor's. There are a few students who have a doubt कि मुझे 2 साल काम करना है या 1 साल काम करना है। तो उसके लिए मेरा easy answer यही होगा that students who are looking for MSc in core subjects, they can easily go as a fresher if they want to immediately after bachelor's with a good 3 months 6 months internship करना है तो you can do that. Students who are planning for an MBA, core specialization MBA only, Right. look in India, work in India for 2 years 3 years, and then you can do your MBA, because as Exactly. MBA as a Yeah, course yeah. will always require experience abroad. It will. It always, I mean, होते हैं freshers Yes. के लिए भी courses MBA होते हैं, but obviously will give you a lot of impact. So I always tell my students, MBA करना है 2 साल experience ले लो, core subjects में जाना है तो move out right now. Exactly. That's something which are so good to know that आपने सही decision लिया था, and I guess you will be reaping your benefits in the coming time. Biggest culture shock क्या रहा है आपका? The time you landed in UK कि अब मेरी family नहीं है, अब मेरे friends नहीं है, I have landed in UK, everything is new people, new culture, new everything. How did you adapt to that change? इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं स्टोरी बताता जी हूँ। सबसे पहले तो ये सर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी मेरी। okay When I got into plane, जब मैं सीट पे बैठा तो बहुत एक इमोशनल वेव चलता है माइंड में, हेड में भी बहुत इमोशनल वेव चलता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अभी भी वक्त है, ठहर जाओ। लेकिन अब सब जो सपना था इतना बड़ा, कभी नहीं सोचा था सर
कि इंग्लैंड जाऊंगा, लंदन में बिग बैन देखूंगा. दैट वाज माय ड्रीम. जो चीज़, जो सिटी, जो देश हिस्ट्री और ज्योग्राफी बुक्स में था, वो अब Real life सच्चाई बन experience गई. हो रहा है. ठीक. तो व्हेन आई लैंडेड, लगेज का, इमिग्रेशन का, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. मैं बाहर गया, मेरे हाथ में टू पीसेस ऑफ लगेज, चेक इन लगेज था. कैबिन बैग मैंने पहनी हुई थी. बाहर जाने के बाद ये सब वेट तो था ही सर, लेकिन जो दिल में वेट कैरी करके जा रहा था मैं वहाँ पे, Sure. क्योंकि आई लिटरली हैड टीयर्स इन माई आईज, क्योंकि नाउ आई हैव फाइनली रीच्ड. Please और wanted to be. वहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दुखी हूँ या खुश हो. खुश हूँ. दुखी इसलिए क्योंकि अब 1 साल या 6-7 महीने में अपने घर नहीं जा सकता. Yes. और हर एक इंसान के लिए, मुझे ऐसा लगता है, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत टफ डिसीजन होता है ये. और एक सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कि घर से निकल के एक दूसरी जगह पे जाके घर बनाना. Exactly. और वहाँ पे मैं लिटरली आई वाज टोटली कि लाइट भी दिख रही है और डार्क भी है. मतलब कभी एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगा कि अब मुझे वापस घर जाना है, अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, कि नहीं आगे बढ़ना है, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना है, ऐसा लगा फॉर एयरपोर्ट से बाहर निकलते टाइम सर, जी जिंदगी में ट्रस्ट इश्यूज होते हैं. जी. मेरे जिंदगी में ट्रस्ट इश्यूज का भंडार है. Okay. मैं बाहर निकलने के बाद जी. बैग्स जब हाथ में थे, जी. a guy came to me and he asked, do you need a cab? Do you want a cab? मैंने बहुत पोलाइटली बोला कि मैंने सोचा उस टाइम पे, रात 11 बजे थे जब मैं वहाँ पे पहुँचा, लैंड किया, बाहर निकला. तब ना ही मुझे रेल रूट समझ में आएगा, जी. न्यू टू द कंट्री, ना मुझे बस जी. रूट समझ में आएगा. जी. तो ऑब्वियसली मैं कैब के साथ जाऊँगा. जी. तो आई सेड कि यस सर, आई डू नीड अ कैब. उन्होंने मुझे लेवल 3 कार पार्क वो लेके गए. जी. आई ट्रस्टेड द गाय. वहाँ पे एक बड़ी एसयूवी आई, फॉर्च्यूनर जैसी एक बड़ी गाड़ी आई. तो आई सेड कि मैं एक अकेला इंसान हूँ, एक अकेला बड़ी गाड़ी स्टूडेंट कहाँ हूँ, है? 2 पीसेस है मेरे साथ लगेज के, लेकिन वो भी छोटा है. जी. मुझे इतना बड़ा एसयूवी नहीं चाहिए, जी. इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए. तो ही सेड कि मैं मिनी के पैसों में, बिकॉज यू आर फ्रॉम इंडिया, मैं मिनी के पैसों में आई विल ड्रॉप यू इन एन एसयूवी. वो एक कैब कंट्रोलर थे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे. तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में. बढ़िया है. तो मैं बैठ गया गाड़ी में. गाड़ी में एक चाइल्ड लॉक था दरवाजे पे, तो इसलिए डोर बंद होने के बाद, क्लोज होने के बाद मैं खोल नहीं पा रहा. विंडो नीचे आई, ही टुक आउट द कार्ड मशीन, फॉरेक्स कार्ड था मेरे पास, एंड ये सेड कि टैप. अब उस वहाँ पे ही प्रॉमिस्ड मी कि लंदन से कोलचेस्टर, बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, तो वो कोलचेस्टर में है. और लंदन से कोलचेस्टर करीब 45 मिनट्स तक का डिस्टेंस है, ड्राइव यार. तो मैंने सोचा कि 45 मिनट्स के लिए कितना होगा, तो आई चेक टू विद ऊबर. तो ऊबर पे 220 पाउंड्स दिखा रहा था, मतलब करीब 22-23 हज़ार रुपये. तो ही सेड कि आई विल टेक यू देयर इन 120 पाउंड्स. तो मैंने सोचा 120 पाउंड्स में जाना है, मतलब 100 पाउंड्स मेरे बच रहे. एज अ स्टूडेंट आई वाज वेरी हैप्पी कि कोई इंसान मुझे मदद कर रहा है, 10,000 रुपये बचा रहा है. तो आई वाज हैप्पी, आई वाज देयर. मशीन उन्होंने जब निकाली तो 120 पाउंड्स पे उन्होंने हाथ रखा था. वो जो डिजिट्स थे उस पे हाथ था, फिंगर था, एंड ही सेड टैप. I trusted him. I took out my forex card and I tapped. And as soon as I tapped, वो जो finger है, जो thumb है, वो थोड़ा सा ऊपर गया. And I saw कि Don't tell me it was not 120. I saw कि 120 pounds की जगह पे it was 468 pounds. मतलब करीब 50,000 या 50,000. 55,000. 49 to 50,000 सर. और वहाँ पे मेरा कोई नहीं है. हाँ. लंदन में ना मेरी कोई फैमिली है, ना फ्रेंड्स है. फ्रेंड्स बाद में बन गए, ना फ्रेंड्स थे.
तो मैं किसी को कांटेक्ट ही नहीं कर सकता। How did you pay? Did you have money enough in your forex card? या फॉरेक्स कार्ड में मैंने रिचार्ज करवा के रखा था। तो जब टैप हुआ जी। एंड व्हेन आई सॉ कि 468 पाउंड्स, जी। मेरा एक रिफ्लेक्स निकला कि फ्रॉड। जी। तो आई सेड फ्रॉडस्टर, एज सुन एज आई सेड फ्रॉडस्टर, उन्होंने गाड़ी का वो डोर बजाया एंड दी वो जो गाड़ी है वो चल पड़ी और मैं गाड़ी के अंदर, और मैं आई एम शाउटिंग एट द ड्राइवर लिटरली क्योंकि पैनिक सिचुएशन था बहुत। तो आई एम शाउटिंग एट द ड्राइवर कि रुकाओ रुकाओ, स्टॉप द कार बिकॉज आई न्यू कि द ड्राइवर ही वाज आल्सो फ्रॉम द इंडियन एथनिसिटी। तो आई सेड कि स्टॉप द कार बट ही वाजंट लिसनिंग, ही वाज टोटली इग्नोरिंग माय कॉल। हम हीथ्रो एयरपोर्ट के बाहर गए। बाहर जाने के बाद कैब ड्राइवर को एक कॉल आया कैब कंट्रोलर से हीथ्रो एयरपोर्ट के, और वो बिकॉज वो कार के ब्लूटूथ से कनेक्टेड था तो आई वाज एबल टू हियर इट। Somebody finally. या Yeah. तो कैब कंट्रोलर सेड कि आई डिड नॉट रिसीव हिज मनी। तो तब मैंने मेरा ईमेल चेक किया। ईमेल पे आया था कि योर ट्रांजैक्शन हैज बीन डिक्लाइंड ड्यू टू चैनल फेलियर, क्योंकि मेरा जो फॉरेक्स कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था वो टैप का फंक्शन ही ऑफ था। तो बिकॉज टैप का फंक्शन ऑफ था तो You could not. आई कहीं ना कहीं तो ऐसा लगा कि इट सेव्ड माय डे। Okay, great. Finally, it could save a lot of things. Otherwise, ये और escalate हो जाता था आगे कुछ करने के लिए. एग्जैक्टली। Perfect. लेकिन उस मोमेंट पे जी। द ड्राइवर इंसिस्टेड मी कि साइड में कैश पॉन्ड है, जी। तो कैश पॉन्ड से आप 468 पाउंड्स निकालो। हम्म। आई सेड मैं नहीं दे सकता 50,000 हम्म। कैब के लिए उस मोमेंट पे। आई एम न्यू टू द कंट्री, आई डोंट नो एनीथिंग हियर, हाउ द करेंसी वर्क्स, हाउ ऑल थिंग्स वर्क। आई वाज टोटली तो वहाँ पे मैंने बोला कि आई कैन नॉट टेक आउट 468 पाउंड्स, मेरे पास नहीं है। आई लिटरली सेड कि आई डोंट हैव दैट मच मनी, आई हैव 120 पाउंड्स कैश, मैं वही दूंगा। Do it off. हाँ, मैं वही दूंगा। तो ही सेड कि ओके आई वोंट लिसन। ही सेड ओके आई वोंट लिसन, you need to pay me 468 pounds or else I won't drop you to Colchester. I hope he dropped you finally. तो Off at home. कहीं ना कहीं एक होता है ना सर, पुणे मुंबई महाराष्ट्र में पले बड़े हैं हम, तो एक स्ट्रीट स्मार्ट चीज होती है अंदर। Exactly. तो वही है exactly because street smartness again. इसलिए I tell a lot of my students also कि when you go out, keep your ears, eyes, everything open to know what's happening around. तो बस ट्रस्ट करके सामने वाले पे बैठ गए। एंड आई होप दिस थिंग इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो आर प्लानिंग। जो चीज़ प्रथम के साथ हुई है, वी कैन अवॉइड दैट थिंग जस्ट बिकॉज वी कुड बी लिटिल स्मार्टर इन नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड। एंड फाइनली ऐसे वापस इंस्टेंस आपके वापस नहीं हुए रहेंगे, आई एम श्योर। कुड बी द फर्स्ट टाइम जो आपके साथ हो गया रहेगा, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। जिन्होंने किया जी वो एक इंडियन थे in Very UK unfortunate. and जिन्होंने बचाया वो भी इंडियन थे in UK. Very nice. So finally, it's a thing which could not happen to you again, Yeah. and we hope it never happens to any of us. Exactly. Also. Right. So, University of Essex, MSc in Financial Technology, right? A few things more on this course. How is the college? How are the professors? And what difference you've seen, doing a bachelor's here and master's there? So sir, precisely saying, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए 6th आता है ऑल ओवर यूके। तो एडमिशन अप्लाई करते टाइम मैंने वो चीज़ देखी थी। कोर्स फिनटेक इज़ अ ब्लेंड ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमें कंप्यूटर साइंस भी सिखाया जाता है, थोड़े कोड्स होते हैं, डेटा साइंस थोड़ा उन्होंने उसमें पुट किया है, फिर मशीन लर्निंग होता है, और उसके साथ ही साथ कॉर्पोरेट फाइनेंस भी है। ओके। फाइनेंस इन मशीन लर्निंग भी है। मतलब एक सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो जो फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं उसके पीछे की जो पूरी टेक होती है उसके बारे में ये कोर्स है। और अगर प्रोफेसर्स के वहाँ पे आए तो
प्रोफेसर्स दे आर लिटरली लाइक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. Okay. जो फील्ड वो सिखा रहे हैं उस फील्ड का डेप्थ तक उनको पूरा नॉलेज है. को जैसे हम बोलते हैं कि कोर फील्ड का कोर नॉलेज है. एंड जो एजुकेशन सिस्टम अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा. आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसी है, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम वैसी है. दोनों के कल्चर्स अलग है, दोनों के एक एल्गोरिदम दोनों का टीचिंग का अलग है. बट जो मैंने बाहर नोटिस किया, बाहर स्टूडेंट हैज़ अ फ्रीडम व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज. यहाँ पे जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है एंड यू आर सपोज टू चूज इट. वही करना है. अगर मैं एआई में मैंने डिग्री की तो इतने सब्जेक्ट्स है, वही आपको करना है. लेकिन जब बाहर में कर रहा हूँ तो सेकेंड डे पे वी वर टोल्ड टू सिलेक्ट मॉड्यूल्स. तो देयर वाज अ वेरी बिग लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स और उसमें से थोड़े मॉड्यूल्स 6 to 7 पर सेमेस्टर में चूज करने थे. तो वो मॉड्यूल्स का चूज करने का एक फ्रीडम होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लेक्सिबिलिटी अब्रॉड एजुकेशन सिस्टम थोड़ी अच्छी लगती है, बेटर थोड़ी फीवर्ड लगती है स्टूडेंट की तरफ. क्योंकि टेस्ट जो होता है जी, टेस्ट सर ओपन बुक होता है. Oh, is it? काफी काफी जो पॉइंट यार कि वो कोर्स वर्क असाइनमेंट्स एग्जाम्स ये बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू नो. यहाँ पे एग्जाम का कल्चर इज वेरी डिफरेंट, यू नो. एंड देयर व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इफ यू वांट टू जस्ट टेल अस कि एग्जाम्स में, टेस्ट्स में और ये सब चीज़ों में क्या डिफरेंस मेजर हो जाता है वहाँ पर? सबसे पहले तो जो एग्जाम्स हम यहाँ पे देते थे वो एग्जाम्स में बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था. और आपने एक ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे जब एग्जाम्स होते हैं तब जेरोक्स के शॉप्स पे बहुत बड़ी लाइन होती है. I agree, totally. लेकिन वहाँ पे एक कल्चर है एग्जाम्स का कि ओपन बुक टेस्ट भी है. तो इसलिए यू हैव द फ्रीडम टू टेक नोट्स विथ यू, लिमिटेड नोट्स विथ यू. उनमें से सारी चीज़ें प्लस ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं. लैब्स में बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है. फिर इसलिए आई एम मोर inclined now towards that education system because I am free to choose anything. You're not inclined towards it, you are now used to it. I am now used to it. You're Yes, used to yes, it now. exactly. Even if you want to do a double masters or a PhD sometime later, you would not do it from India because you are so used to that education, that style of teaching, and it happens to a lot of students because Right. that's something which easy पड़ जाता है and it's very different. And one thing to highlight, sir, very major की कि अगर आपको प्रोफेसर्स के साथ बात करना है जी तो दे आर दो बीइंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जी दे डू गिव अस टाइम. very approachable. वेरी Professors अप्रोचेबल, are very approachable. वेरी अप्रोचेबल. Okay. एफर्ट्स वो भी उतना पुट करते जी. हैं. तो उनका जैसा शेड्यूल चलता है उनको ईमेल करना पड़ता है. तो दे लिटरली रिप्लाई टू आवर ईमेल Oh, is it? विद इन एन आवर और टू. हाँ. तो when we get the reply they schedule a meeting on Calendly or something else. अगर ऑनलाइन है तो वरना फिजिकली आप जाके क्लासरूम्स में जाके विजिट कर सकते हो उनके कैबिन्स में. So a lot of difference is something which you see, right? A student going abroad, doing his masters. Along with that, I see that you being you, as you said, you were a public speaker. You are a public speaker. Now you say you are, how old are you now? 22. Yeah, 20. And in my introduction, I said you're doing this thing. You are a public speaker in the last 10 years. So when did you start? You started at the age of 12. You've been on that, on stage. कोई डर नहीं लाइफ का, किसी से बात करने का कोई डर नहीं. एंड आई गेस यू टेकन दिस थिंग इन इंडिया टू एन इंटरनेशनल लेवल वेयर आई बिलीव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल events and the podcasts and something which you do there, right? Exactly. So if you just like to tell us कि वहाँ पे आप क्या क्या करते हो ये सब चीज़ के बारे में. So actual में सर एक मिनट में मैं सिर्फ एक मेरा बैकग्राउंड बता दूँ. मैं first of all, at what age did you learn ABCD alphabets? At what age? 4, 5. 4, 5. Yeah. I learned ABCD at the age of 12 Okay. when I was in my 5th standard. Okay.
because I was diagnosed with dyslexia. Okay. तो बहुत मेजर लेवल पे डिसलेक्सिया था एंड आई हैड दैट फियर ऑफ स्पीकिंग. मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, रीडिंग स्पीकिंग सब स्किल्स ज़ीरो थी. तो इसलिए तब एक लर्निंग एबिलिटी बन गई थी जो आज तक चलती आ रही है. एंड जब व्हेन आई शिफ्टेड अब्रॉड तो आई सेड कि यहाँ पे द ओनली की टू सर्वाइव इज़ कम्युनिकेशन, द ओनली की टू सर्वाइव इज़ नेटवर्क. आपको जॉब्स के लिए भी रेफरेंसेस की ज़रूरत होती है, बहुत सी चीज़ें होती है. तो इन इंडिया आई वॉज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन called TI, Toastmasters International. So when I moved there, स्टार्टिंग का एक महीना जो होता है वो थोड़ा डिप्रेसिव लगता है, डिप्रेस्ड लगता है. तो तब मैंने वेबसाइट ओपन की TI की. वहाँ पे फाइंड क्लब का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लब फाइंड किया तो एक कम्युनिटी मुझे मिल गई वहाँ पे. And you joined that. एंड आई जॉइंड टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल है और एक इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बाइंड है. So you've made your weakness at some point of time early in your life your strength now. Exactly. Right? I see your Instagram post, your pages also. You talk so much and you talk in a lot of areas, lot of domains, which helps a lot of students. So Right. brilliant job. I'm so happy. Just not being my student and you've been doing so many of these things. Right? So students can go abroad and do all of these things also. Right. Not only in their assignments, their courses, they can get into an extracurricular things which is always very open to a lot of students, right? Right. Anything else apart from this do you think that a student can do once he goes there? Also, obviously, I would want to come on to the point of Right. managing your time also with your course time, your college time, and the part-time jobs. Yeah. Most important, coming to Right. part-time jobs, because that is again a part of your entire day. Right. So how do you majorly divide your course, college, lectures, and your part-time jobs also with it? सो सर जब एक स्टूडेंट वहाँ पे जाता है तो स्टार्टिंग में एक चीज़ बम्बार्डेड रहती है कि यूके एजुकेशन इज़ वेरी टफ. जी. क्योंकि न्यू एजुकेशन सिस्टम है तो स्टार्टिंग में टफ लगने Yeah. लगती है. बट कॉलेज जो है मास्टर्स की अगर बात करें तो एक वीक में 3 लेक्चर्स होते हैं 3 दिन में. Hmm. मतलब आपको सिर्फ 3 दिन के लेक्चर्स है एक वीक में, जी. तो बाकी के 4 दिन करोगे क्या? True. तो इसलिए कोई तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटेलिजेंस चाहिए. एक नेटवर्क के लिए अलग अलग कम्युनिटीज़ में जाना पड़ता है और जब वो नेटवर्क बनता है, वो जब एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड व्हेन यू ग्रैब इट, व्हेन यू गेट अ पार्ट टाइम जॉब. आई वोंट फॉरगेट टू मेंशन कि मुझे मेरा पहला पार्ट टाइम जॉब जो है वो भी मेरे नेटवर्किंग की थ्रू मिला था यार. So very important is Very that word, important. that networking. Networking को हम, I mean, obviously I keep telling this, but जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है ना, स्टूडेंट्स वो पार्ट पे नहीं बिलीव करते हैं कि Right. नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू टॉक, यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल. आप जितना बात करोगे, जितना आप उनसे कुछ, एवरी टाइम इज नॉट कि मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए. It's just about talking and exploring things and getting to learn a lot of things from them. Right? I'm sure you've done that and you are. मैंने सर बचपन में एक पढ़ा था कुछ एंड इट वाज लाइक इन रोम बिहेव लाइक रोमन्स डू. तो स्टार्टिंग से एक माइंडसेट था कि वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ का बन के रहूँगा. Yeah, exactly. और वही होता है कि बच्चे once you move out of your comfort zone, तो things open for you. ठीक है. कितने बार मैं तो ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि यूके मत जाओ. यू नो, इफ यू आर स्कैर्ड तो यूके मत जाओ, आप वापस आ जाओ इंडिया. बिकॉज इफ यू वांट टू बी इन योर कंफर्ट जोन, डोंट गो आउट. कंफर्ट जोन में आप जितना रहोगे इंडिया में, एवरीथिंग इज फाइन. यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ पीपल, यू हैव अ फ्रेंड्स, यू कैन कम बैक होम टू योर पेरेंट्स. जब जैसे ही आप बाहर जाते हो, फर्स्ट यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको पार्ट टाइम जॉब मैनेज करना है, आपको काम करना है, आपको साथ में कॉलेज करना है, सब कुछ करना है चीज़ें. एंड इट्स फन. आई थिंक इट्स, आई मीन, यू आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल लाइक माई अदर स्टूडेंट्स. दे एंजॉय. If you like something which you want to do, you will definitely enjoy it. And sir, the worst part of being abroad or shifting abroad is आपको एक भी चीज़ हाथ में नहीं मिलेगी. सब करना है कुछ. तो right from my breakfast to my dinner Yeah. and in the middle lunch, सब मुझे खुद का खुद ही करना पड़ता. Laundry.
लॉन्ड्री भी, यस सर. वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट. तो वो अकोमोडेशन का बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अकोमोडेशन का वो वॉशिंग मशीन्स वगैरह होते हैं, तो उससे उधर से लॉन्ड्री का सीन सॉर्टेड है. बाकी सब तो खुद का खुद ही करना पड़ेगा. Nice. So how do you mainly manage your part-time jobs? Manage as in the income which you earn. What are types of part-time jobs mainly are open for students? Right. So a student who is going out, does he need to be very specific to his course-related part-time job? And I'm sure he can do a lot of work as well. Kitna earnings usually do you earn in part-time jobs, and how Right. easy or difficult it is to get that job once you go there? सो सर पार्ट टाइम जॉब्स का सिनारियो ऐसा है कि वो इजीली अवेलेबल नहीं है ऐसा लोगों को लगता है. Yeah. बिकॉज ऐसा देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम एरिया वाइज एक छोटी कंट्री जी. मानी जाती है. Yeah. उसमें इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड में माइग्रेशन रेट इतना ज़्यादा है कि जी. पार्ट टाइम जॉब्स कम लगने लगे जी. क्योंकि नेटिव पॉपुलेशन भी कम है. तो the part-time job that I do, it is basically content writing Okay. for a firm. So I earn 19.75 pounds per hour. Per hour. Okay. तो जो मिनिमम वेज है जी. वो है 11.75. Exactly. I was coming to that point. Yeah. Right. Minimum wage is 10 to 11 pounds is what is the average. Right. 11.75. Yeah. तो वीज़ा के रेगुलेशंस के हिसाब से जी. एक वीक में एक स्टूडेंट 20 आवर्स 20 काम कर hours. सकता है. True. तो अगर ऐसा देखा जाए तो हर एक स्टूडेंट जो बाहर जाता है वो उसका INR में अगर कैलकुलेट करे तो 1 लाख से 1.5 लाख तक वो कमा सकता है. True. तो मेरा एक माइंडसेट ऐसा बन गया था कि बिकॉज आई एम गुड एट ट्यूटरिंग टीचिंग पहले से, तो आई वाज लाइक कि ट्यूटरिंग जॉब्स करते हैं बाहर जाके. बट मेरी वहाँ पे एक रिसर्च लैक कर गई कि वहाँ पे जाके एक अलग अलग टेस्ट्स के रिपोर्ट्स लगते हैं, अलग सर्टिफिकेट्स लगते हैं ट्यूटरिंग के UK बेस्ड, अच्छा. जो मेरे पास नहीं थे. Okay. ट्यूटरिंग जॉब्स आर द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, Okay. पार्ट टाइम जॉब्स, जो 30 pounds पर आवर दे पे. 30 pounds per hour. तो वहाँ पे मेरी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. जी. एंड देन आई वाज लाइक कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो दे वर्क इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, दे वर्क इन लाइब्रेरीज, फिर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियंस है वहाँ उसमें भी है, एंड दे अर्न गुड. मैनेज करने के बाद दे अर्न गुड. सो मुझे ऐसा था कि व्हाट शुड आई डू. तो मुझे ये समझा कि आई एम गुड एट राइटिंग कंटेंट. तो आई सेड कि दिस job suits me This is my thing. and I can go with this. So this mainly goes out to a lot of students and viewers also. This question comes up to me a lot of times in my sessions, in my seminars, webinars कि sir part time job तो हमको जाके we have to work in restaurants, in grocery shops, in cafes and all that. A lot of students are not comfortable here, would not want to do that. So for all of you guys, this is also one option which could be open, right? Like a content writing, teaching. It's just that you need to have it in you to get a job. Right? Jobs available है, वो आपको इसीलिए नहीं मिलते because you are not worth that job. Is it right? ऐसे ही होता है ना. स्टूडेंट्स वही सोचते हैं कि सर नहीं है, ये बस नहीं है वहाँ पर. बट जैसा आपको मिल चुका है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो गेट दिस पार्ट टाइम जॉब अर्निंग. सीन से ऐसा होता है कि बाहर जो है वो डिग्निटी ऑफ लेबर है. True. तो छोटा सा छोटा काम हो लेकिन उस काम की रिस्पेक्ट है. Exactly. एट द स्टार्ट बिकॉज स्टूडेंट इंडिया में बहुत अच्छे से रहते हैं फैमिली के साथ, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता. जब बाहर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं रेस्टोरेंट में काम क्यों करूँ, Because we are not used मैं to डिश it. वॉशिंग क्यों करूँ. We are not used to it here. वी आर नॉट यूज्ड टू इट. तो इसलिए दे डोंट अप्लाई फॉर इट, फॉर दोज जॉब्स. दे स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दी अदर हायर जॉब जिसके लिए पोर्टफोलियो अच्छा चाहिए, Exactly. जो आपको बनाना पड़ेगा विद ड्यू टाइम. True. तो कहीं ना कहीं सर ऐसा सिनेरियो. So part-time jobs as a thing, I will just conclude by saying one thing कि अगर UK जाना है आपको, तो अगर 30-35 लाख का खर्चा है, वो 30-35 लाख खर्चा दिखता है ऊपर से, from ऊपर का व्यू पॉइंट इफ यू गो टू सी. But actually speaking, your part-time job is taken care in your living expenses taken care in your part-time jobs. Part-time jobs. Correct me if I'm wrong. Right? हम जब 9-10 लाख बोलते हैं कि हमको लिविंग का लगने वाला है,
आपने बताया कि 1.5 लाख पर मंथ हमारा पार्ट टाइम जॉब की इनकम से आ जाता है. इवन इफ आई कंसिडर 10 पाउंड टू 12 पाउंड पर आवर, स्टिल मैं तो बोलता हूँ कि 1 लाख पर मंथ के आसपास 800 to 900 पाउंड्स आराम से यू कैन अर्न अप टू 20 आवर्स अ वीक. वो हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका entire living expense for the whole year is taken care in your part-time jobs. Right. Now this means that your only expense is your tuition fee which you are paying, because you can go there and work in part-time jobs. अब जब ROI calculate करते हैं हम during the final job, be it with a 30,000 pounds का annual package or a 40,000 pounds annual package, the ROI is not 30 lakh against 40 lakh. It is the tuition fee का amount versus the final amount which you're getting. Exactly. Because ROI आपका पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है वो सिर्फ ट्यूशन फी का इन्वेस्ट हुआ है, राइट? तो कमिंग टू द फुल टाइम जॉब्स ऑल्सो नाउ, हाउ अवेलेबल आर फुल टाइम जॉब्स? बिकॉज दैट्स समथिंग दैट्स अ नेक्स्ट स्टेप फॉर यू नाउ. यू वुड हैव हैड योर सीनियर्स एलुमनाइज लास्ट ईयर के जो होंगे. हाउ इज द जॉब मार्केट इन यूके? That is a very important question, because there are like thousands of students asking me this question. Sir, UK में job market अच्छा नहीं है, हमें job पे नहीं, हमें नहीं apply करना UK में. Can you throw some light on how is the market outside now in UK? सर यूके का जॉब मार्केट अगर वैसा है, जी. इंडियन जॉब मार्केट कहाँ सिंपल है अच्छा सर. है. True. कंपटीशन वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. True. इफ यू आर फाइंडिंग एन एस्केप एंड गोइंग देयर, यू आर गोइंग नोवेयर, True. बिकॉज वहाँ पे फिर आपको जॉब नहीं मिलने वाला. यू नीड टू बिल्ड अ गुड पोर्टफोलियो. वहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं. इंस्टीट्यूशंस वैसे प्लेसमेंट्स नहीं देंगे जहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस में जैसे प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आते हैं, आपको एक एक करके इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, एप्टीट्यूड टेस्ट देनी पड़ती है. वैसा सिस्टम वहाँ पे नहीं है. उसका एजुकेशन सिस्टम अलग है. जी. तो इसलिए जॉब फेयर्स यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं. जी. तो एक जॉब फेयर में करीब करीब 40-50 कंपनीज डेस्क लगा के आते हैं, बैठते हैं. You need to go there, you need to apply for it, go and give your resumes. Resume पे अगर थोड़ा बोलना चाहो तो काफ़ी लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स इसलिए नहीं मिलते बिकॉज दे अप्लाई विद कैनवा के रेज्यूमेस, जो एक इंडियन चीज़ लगी है कि दे अप्लाई विद कैनवास रेज्यूमे, जो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है. जी. जी. तो वो हर एक कंट्री का एक फॉर्मेट होता है रेज्यूमे का, और आपको उस फॉर्मेट के हिसाब से चलना पड़ेगा. True. अगर आप यूके में हो तो यूके का एक स्पेशल सीवी का एक फॉर्मेट है जिसमें फोटो नहीं आती, जो एक स्टैंडर्ड है, अच्छा. जो एक कम से कम चीज़ों में ज़्यादा बताता है, कम से कम वर्ड्स में आपके बारे में, आपके डिग्री के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा बताता है. प्लस कवर लेटर होता है जिसमें थोड़ा ब्रीफ में आपको कॉन्साइज करके चीज़ें पुट अप करनी होती है. So which means obviously you will never get a job in UK unless you make a good CV A good and CV. apply to at least how many companies? Right. 50 क्योंकि companies, आपके 60 पास companies? आपके पास एक अच्छा नेटवर्क भी हो. चलो अच्छा. मान लिया कि किसी स्टूडेंट के पास अच्छा नेटवर्क है, हम्म. फैमिली कनेक्शंस है, फ्रेंड हम्म. कनेक्शंस है, हम्म. नेटवर्क अच्छा है, हम्म. आपको सीवी भेजना पड़ेगा. हम्म. और फिर वो सीवी आगे भी हम्म. हम्म. भेजेंगे. हम्म. तो इसलिए वो थोड़ा एक हम्म. सिंक होना पड़ेगा सर हम्म. उस मोमेंट पे, Agree. क्योंकि आपका सीवी वहाँ पे अप्रूव होना जी. चाहिए उस रिक्रूटर से जो रिक्रूट कर रहा है. Absolutely, absolutely. मेरे को एक चीज दिल पे हाथ रख के बताना, is a 40,000 pounds annual income possible for a fresher maybe or a 1 year 2 year experience as per you? Tell me. मैं जब वहाँ पे गया तो आई मेट डिफरेंट पीपल. एक रोमानिया का एक इंसान मुझे मिला. ही इज फ्रॉम रोमानिया. तो ही वाज वेरी स्ट्रगलिंग विद जॉब्स. उसने 140 कंपनीज के लिए अप्लाई किया था. 140 कंपनीज. उसके रेज्यूमे में एक छोटी सी दिक्कत थी. वो दिक्कत उसने सॉल्व की, एंड विद इन 10 days ही गॉट अ ऑफर ऑफ 56,000 का पैकेज, पाउंड्स. 50,000 pounds annually. annually. So he is now settled in London. So again, ROI का जो मेरा point था previously, see, these are not my questions, Pratham. Understand, right? You've been my student. There are
numerous students who we talk in the Right. entire day. UK as a destination is always students are very confused about UK. पता नहीं बाकी सब कुछ हो ना हो US में obviously a lot of things now happening, but still number has gone down, but आते हैं अभी भी applications for US. UK जब सामने आता है ना, there is this notion about UK कि यहाँ तो जॉब्स ही नहीं है, यहाँ तो जॉब्स ही नहीं, यहाँ तो मिलना ही नहीं है. ओके, इसीलिए आई वांटेड टू थ्रो दैट क्वेश्चन टू यू दैट समवन हूज बीन देयर फॉर अ ईयर, समवन हूज मेट सो मेनी पीपल, नाउ कमिंग फ्रॉम यू मेनली माय स्टूडेंट्स वुड बी अ लिटिल इन कंफर्ट कि चलो शायद 56,000 पाउंड्स नहीं, एटलीस्ट अ स्टार्ट पैकेज बिटवीन 30 to 40,000 pounds is possible only and only if you do your basics right in terms of your CV, applying to a lot of companies and networking. That is the term which I am focusing a lot on, is networking. Any platforms that you want to recommend the students, like LinkedIn or any other platform also, which would help these students fetch a good job? For the jobs. Yes. LinkedIn has, Indeed है. Hmm. फिर other than these sites, if you get to connect with a lot of communities out there, अलग अलग पेजेस होंगे. जी. आपके आसपास देखो, आपके जी. आसपास अगर कई यूनियंस बन रहे हैं Hmm. तो वहाँ पे जाके एटलीस्ट यू कैन नेटवर्क. Hmm. तो एक चीज़ मैं पुट अप करूँगा सर यहाँ पे. आई मेट अ लॉट ऑफ ब्रिटिश पीपल देयर Hmm. एंड दे वर हैविंग अ टेक ऑन दिस कि व्हाई आर इंडियन स्टूडेंट्स, Hmm. व्हाई डू दे फील दैट दे आर फेलिंग देयर. Hmm. Excellent point. एक स्टूडेंट Hmm. यहाँ से जाता है जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, Hmm. Hmm. दूसरा स्टूडेंट यहाँ से जाता है जिसकी इंग्लिश ऑन पॉइंट है, जी. तीसरा है जो हु विश टू मैच देयर लेवल, नेटिव लोगों की जो लेवल है Hmm. वो मैच करना चाहते हैं. Hmm. ब्रिटिश पीपल आउट देयर, Hmm. ऑल द पीपल जो नेटिव पॉपुलेशन है, दे जस्ट वांट यू टू बी यू. Hmm. They don't want you to mimic them. Absolutely. So their simple point was Hmm. कि sometimes we find it a little disgusting when someone new to our country is trying to mimic us, Hmm. is trying to just sound like us. And our accent. They do accept Hmm. Indian accents. Hmm. क्योंकि ये बहुत बड़ा टैबू है कि जी. लोगों को उसी लैंग्वेज में, उसी एक्सेंट में बात करनी है. मेरे फ्रेंड्स जो है, Hmm. जब मैं यूके से वापस आया तो दे वर लाइक कि अरे तेरी जो अभी एक्सेंट है वैसी की वैसी है, Hmm. Hmm. मेरी जो इंग्लिश एक्सेंट है It's आई still आई the same. स्पीक द सेम. Yeah, I still speak the same. Right? Ask me. I still speak the same. एग्जैक्टली आई स्पीक द सेम. Yeah. तो ऐसा नहीं कि वो बदलाव चाहिए या फिर जी. दे वोंट एक्सेप्ट यू अनलेस यू जस्ट सिंक्रोनाइज योर एक्सेंट और एनहांस योर एक्सेंट. Yeah. वैसा कुछ नहीं. So Pratham, what do you do on weekends mainly? Or is there any time in a week that you miss your family? You study, you work in your part-time jobs. वो एक जो दिन रहता है जब आप सोचते हो यार आई एम सो लो टुडे, तो आप सोचते हो बारे में, या कोई ऐसा दिन आपके पास पिछले एक साल में आया है दैट इट इज़ द लोएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, यू फील कि इज इट अ राइट डिसीजन विच आई हैव मेड, या मुझे आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, आई एम वेरी लो टुडे, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कुड डू टू मूव आउट ऑफ दैट, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स might go through these things as well, maybe not every day, but yeah, once a week or once a month. So how have you faced this thing anytime, and yes, how have you moved out of it? सर अकेलापन और फैमिली की याद जी. एक दिन नहीं हर दिन आती है. जी. और सबसे हर टाइम मतलब एक मोमेंट आता है जब ये चीज़ इतनी सताती है Hmm. कि हर दिन मैं इंस्टीट्यूशन से घर पे आता हूँ. Hmm. आने के बाद मेरे अकोमोडेशन के, मेरे जी. फ्लैट का जी. डोर ओपन करता हूँ. जी. एंड व्हेन आई ओपन द डोर, Hmm. व्हेन आई टर्न बैक आफ्टर क्लोजिंग द डोर, आई फाइंड नो वन. एक खाली रूम है जिसमें इसमें आप- एक बेड है, विंडो है, कबर्ड, एंड देयर इज नो वन. एक आदत होती है ना हमें कि घर से जब हमें इंडिया में थे तो sisters, इधर से घर गए, जी. घर जाने के बाद जी. माँ Yeah. खिलाती है, पूछती है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इट वाज लाइक कोई नहीं है यार, क्या करूँगा मैं. तो एक मंथ
स्टार्टिंग का जो फर्स्ट मंथ था, जी जहाँ पे फ्रेंड्स बनने थे, जी नेटवर्क बनना था, एक कम्युनिटी ज्वाइन करनी थी, जी वो फर्स्ट मंथ इट वाज लिटरली आई वाज लिटरली फीलिंग दैट आई एम डेड हियर. श्योर. आई वाज डाउटिंग माय ओन डिसीजन कि मैं ये कहाँ पे, बिकॉज एक सबसे हार्ड चीज़ बताता हूँ. आई वेंट देयर इन बैक सितंबर, तो तब से विंटर चालू था. जी विंटर चालू था, शाम 3 बजे के बाद हो जाती थी. तो मैं सुबह उठा, उठने के बाद इंस्टीट्यूशन गया, क्लासेस करे, क्लासेस के बाद थोड़ा कॉलेज में कॉफ़ी वगैरह पी, फिर लाइब्रेरी गया, 2-3 बुक्स जो हमें सिखाया गया है वो देख लिया. उसके बाद जब घर आता हूँ, घर आने के बाद 3 बजे ही पूरा अंधेरा, Yeah, this darkness. totally dark. When I open the door, I find no one. This was the same rotating thing every single day. But once you get to a good circle, good friends, then you start hanging out with them. तो फिर weekends जो है, तो it was all about fun. Now we would want to know the fun part. Fun. You know, what's like a weekend in UK or in London or the place where you are? Right. क्या होता है mainly? How is it? तो What's the fun weekend पे सर people mostly party on weekends, but I am a teetotaler. तो I don't drink, I don't smoke, I don't do anything. तो मेरे लिए पार्टी सिर्फ नाचना है, So you go सिर्फ three नाचना है. times. But I don't go there often. Okay. I go to my मेरे अकोमोडेशन में एक गेम जोन है जी. जहाँ पे हम पूल खेलते हैं, फिर थोड़ा PSP खेल लिया, फिर उसके बाद एक से थिएटर है. अकोमोडेशन बहुत अच्छा मिला. अच्छा. Okay. वो How far is it from the university, if I can ask? 10 minutes walking distance. Walking distance. Okay. So good for you. वेरी गुड फॉर यू. तो सिनेमा थिएटर में थोड़ा मूवीज वगैरह देख लिया, तो थोड़े इंडियन फ्रेंड्स हैं, जी. तो कभी कभी मैं आई एम मराठी, मैं मराठी है, सो आई वाज लाइक कि मैं मराठी कब बोलूँगा, तो आई वेट फॉर दैट फ्रेंड टू कम. व्हेन दे सेड आई स्पीक इन मराठी विद देम, तो आई फील रिलीव्ड ऑन वीकेंड्स, बिकॉज वीकडेज पे काफ़ी पार्ट टाइम शिफ्ट्स होते हैं सबके, कुछ लोगों के नाइट शिफ्ट्स, डे शिफ्ट्स. आपल्या मराठी फ्रेंड आहे बोलायचं असेल then you can in मराठी. तुम्ही जर बाहेर जाणार असाल आणि बाहेर जाऊन जर तुम्हाला खूप जास्त डिप्रेस्ड वाटतं आणि तुम्हाला असं वाटतं की मन हलकं करायचं मला, तिथे तुम्हाला दर 10 लोकांमध्ये एक मराठी माणूस भेटतात, कारण की मायग्रेशन रेट तेवढा आहे. दर 10 जणांमध्ये एक मराठी माणूस भेटेल, कोण ना कोणतरी एक इंडियन माणूस भेटेल तुमच्यासोबत. मन हलकं करण्यासाठी कोणतर पाहिजे ना साईड. तशी लोक भेटतात. जास्त टेन्शन घ्यायचं नाही, जास्त लोड घ्यायचा नाही. घरातल्यांसोबत सुद्धा व्हिडिओ कॉल होतो आता. आधी असं व्हायचं, पहले ऐसा होता था कि जब बाहर जाते थे लोग, तो बाहर तब ना टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था, तब वो लेटर्स लिखते थे, ये सब था. Now you have everything with you. बट अभी वीडियो कॉल है. Yeah, exactly. यू हैव टेक्नोलॉजी विद यू. 24/7 आपकी मम्मी आपके वीडियो कॉल पे होती है. True. पहली बार सलमान सर वहाँ पे जाने के बाद मैं उपमा बना रहा था, वो गलती से रायता बन गया मेरा. लिटरली वो इतना ज्यादा लिक्विड हो गया था जी, जी, जी. कि वो उपमा का वो दूर दूर तक खत्म था सर. तो माय मदर गाइडेड मी विद ईच एंड एवरी रेसिपी. तो आई एम नाउ अ शेफ. You are now a chef. आई प्राउडली से दिस, आई एम नाउ अ शेफ. Absolutely. मेरी चपाती भी, मेरी रोटी भी गोल बनती है, सब सब्जी में भी तेल नमक सब कुछ Your on mom point. and your siblings back home would be so happy to hear this. Very Your happy. sisters mainly. आने के बाद सर मैं घर आप ही काम कर रहे हो. You का are रसोई only- में ही चलो, घर बढ़ का. गया. Great. So, just last thing, would you recommend someone who would want to go abroad? A yes or a no? Yes, if you are prepared. No, if you are not. If you think that you are ready to take all this weight, this is not a weight actually. Responsibilities are never weight. But if you think that you are pumped up for this, go for it.
should go for it. Because unless and until you don't go there, you won't learn. Till the time you don't jump in the swimming pool, you will not know. Exactly. Right. वो सिर्फ YouTube पे हम plan करते रहेंगे कि I'm a swimmer, right? So when a student would want to go there, there are 2-3 ways of doing it. One, a student who's doing everything on his own. Secondly, he might take his friends, colleagues, or someone who's in there, his help. Thirdly, is going through a professional, a consultancy. How much do you think is important a consultancy who's helping a student, and what role, as per you, consultancy has played in your part, in your process? We cannot see without light. So आप जब कोई डिसीजन लेते हो, जी. जब मैं कोई डिसीजन ले रहा था मेरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अलग अलग करियर ऑप्शंस के लिए, तो उसमें कंसल्टेंसी प्राइम प्लेयर, बहुत क्रूशियल प्लेयर इसलिए थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे क्या चल रहा है. मुझे नहीं पता था कि अब्रॉड में चीज़ें कैसी चलती है. मुझे नहीं पता था कि SOPs कैसे क्या होते हैं, वहाँ पे रेज्यूमे कैसा लगता है, एसेज कैसे लिखते हैं, वहाँ के चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं. और वो कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल को समझने के लिए आपको एक मेंटोर चाहिए, एक कंसल्टेंसी चाहिए जो आपके साथ खड़ी रहे, जो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि सर अभी ऐसा लगता है कि वो चीज़ें तो ठीक थी, मतलब समझ में आ सकती थी अभी, बिकॉज आई हैव बीन देयर फॉर एन ईयर, अराउंड 8 to 10 months. तो आई कैन से कि वो हो सकते थे चीज़ें, कुछ काफ़ी बड़ी थी, कुछ काफ़ी छोटी थी. बट I would say that if you are a beginner, if you are a fresher, or even if you are not a fresher but still an experienced working professional and you are aiming to go there, you need a mentor, you need a consultancy who will be guiding you to that path. Absolutely. And isme, like I had said last time, some time back, a consultancy will be your friend for the next 8-9 months. Right. Your rapport with the consultant and the consultancy is very important. So whoever you choose, for students also, whoever they are planning to choose as the consultant, the first interaction and the initial interactions are the times that a student can understand कि मैं इनके साथ for the next time, can I stay with them for the next 4 months, 6 months? There are so many consultants in the market, right? आप हर जगह पे जाके different views लेते हो. Students ही इतने बार हो जाते हो consultants में choose करने के लिए which one should I go with, right? So my tip to a lot of students also who are watching this, like Pratham, you can choose the consultant as per your choice. Only and only note, you should be comfortable with the counselor and the consultant who you are with. बाकी तो सब ऊपर वाले पे भी हम कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, राइट? वी आर द वंस जिनके थ्रू आप आते हो. आपका ड्रीम रहता है हमारे हाथ में. सो आवर जॉब इज़ टू जस्ट सर्व एज मच एज वी कैन. बाकी तो ऊपर वाले छोड़ते हैं आपके एफर्ट्स पे, एवरीथिंग इज देयर, राइट? सो थैंक यू सो मच प्रथम फॉर योर honest experience, your insights on everything, right? I hope the students and the audience who are watching this, थोड़ा सा भी अगर उनको UK के लिए हेल्प हो जाए after watching this and the culture outside, I think we've done our part good, right? So thank you once again for giving us the time. All the best to you, and the first job package that you get, the first job offer, I hope I'm the first person you call me, right, to inform me on that. Right away. Thank you. Thanks, Pratham. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you so much, Pratham. One last thing which we have here, a small hamper which we give to our guests. This is for you, right? A small hamper from our side. We wish you all the best, and you're gonna go big. That's something Indeed. which I can assure. With your blessings. Thank you Thank you so Pratham. much. So thank you everyone for listening to us till the end. The team goes through a lot of efforts when we get this podcast up and running, and to help you with all the information from these expert guests. The only thing in return we ask you is to subscribe to our channel so that we can help you get more guests and give you all the valuable information. Also, if you guys can share to your friends, this will be very helpful. Most importantly, you can write down in the comments if you feel anything that needs to be changed in this podcast. Good things, bad things, both more than welcome. So next episode tak, take care of yourself, and
with new guest and a new topic. Shall we connect?